أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ راغب، علی اصغر، غلام علی، فرقان، چراغ، شارف، سبیکہ، طاہرہ، نوشین، سکینہ، نصرت اور سرور رضوی کے نام سے آپ کا کیا نام تھا؟ شہناز فاطمہ. کل نہیں تھی آپ؟ چلیے، ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب الحمدللہ قصہ قرآنی، تفسیر موضوعی میں قصہ قرآنی. سکینہ آواز آ رہی ہے سبھی کا؟ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ داستان اور خیال ہم اجزاء ترکیبی، کیا قرآنی قصوں کے اجزاء ترکیبی. تو نارمل جو ادبیت فنی کہانیاں ہوتی ہیں وہ اس میں جو اجزاء ہوتے ہیں کیا کیا ہوتے ہیں؟ ایک کریکٹر، کردار ہوتا ہے، منظر ہوتا ہے، رفتار و کردار، زمانہ اور جگہ، بات چیت، یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن قرآنی قصوں میں کون سے اجزاء سب ہوتے ہیں یہ والے اجزاء یا نہیں؟ جی سبھی کا ہوتے ہیں یہ سارے اجزاء؟ نہیں ہوتے ہیں، نہیں ہوتے. قرآن ان میں سے ان بعض چیزوں ہر چیز کو جب ہی استعمال کرتا ہے، بیان کرتا ہے جب وہ اس کا مقصد اور ہدف پورا ہو رہا ہو تو، ورنہ نہیں. کہیں پہ کریکٹر بیان نہیں کرے گا، کریکٹر بیان کر دے گا، نام نہیں بیان کرے گا. جی کہیں پہ واقعہ وہ داستان واقعہ ہے وہ بیان کر دے گا کریکٹر، لیکن جگہ نہیں. جی مکان کہاں ہوا، نہ زمان مثلا. تو قرآنی داستان اور قصہ اس کا جو روش ہے وہ کیا ہے؟ وہ روش یہ ہے کہ قرآن اسی حد تک جو فنی اور ادبی داستان اور کہانیوں کے جو اجزاء ہوتے ہیں ان کو اسی وقت اپنے مقصد کے تحت یوز کرتا ہے. مقصد ہے تو بیان کرے گا، ورنہ بات کو نہیں. ٹھیک ہے نہیں جی؟ اب ہم قصے کے جو کچھ بنیادی عنصر ہیں ان کی وضاحت کے ساتھ کریں. سب سے پہلی چیز کردار. قصے کے جو بنیادی عنصر ہیں ان میں سے ایک اصلی کیا ہے؟ کریکٹر ہوتا ہے. نہیں کریکٹر قصے کا اہم ترین عنصر شمار ہوتا ہے، کریکٹر، کردار. جی تاریخی داستانوں اور خیالی افسانوں میں قصے کا جو بتایا تھا نا مرکزی جو محور ہوتا ہے، مرکزی ہوتا ہے، کردار انجام دینے والی شخصیت ہے جو پورے واقعہ اور داستان پہ حاوی رہتی ہے، جسے قصے کو پڑھنے والے کی توجہ اکثر اسی پہ رہتی ہے، اسی پہ. جی ٹھیک ہے. اب شکتیمان سیریل دیکھیں تو ساری توجہ آپ کی دیکھنے میں کہاں رہتی تھی؟ گنگا دھر پہ مثلاً ہے اور کلوش پہ مثلاً. تو سب کہانیاں داستان الف لیلا کی جو کسے کہتے ہیں الف لیلا، ہزار راتیں. کتنی؟ ہزار راتیں. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہزار راتیں کس کو نہیں پتا، بہت کو نہیں پتا ہے کیا ہے یہ کیا ہے. حقیقی داستان ہے. لیکن باقی جو چیزیں ہیں اس نے جو 100-1000 راتوں یہ داستان سنائی ہے وہ قصہ کہانی اصلی ہے یا وہ افسانوی، وہ نہیں پتا. لیکن ہاں یہ بات ہے کیا نام تھا اس کا؟ لڑکی تھی دو، ایک وزیر تھا ایک بادشاہ کا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، مہر بانو ایسی کچھ نام تھا، شہر ایسے کچھ تھا، شہرزاد اور مہرزاد ایسی کچھ تھی 2 بہنیں. لیکن دونوں بہت ہوشیار اور ذہین تھی. کیا تھی؟ بادشاہ جو ہے وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا. ارے یہ وزیر تھا، وہ بادشاہ کا الگ کریکٹر ہے، وہ سن لو پہلے. بادشاہ جب شکار میں پرانے زمانے میں جاتے تھے، ان کی شکار گاہ جو ہوتی تھی ایک طرح سے آپ ان کا وہ سمجھ لیجیے کیا بولتے ہیں اس کو، جیسے آج کل وہ ہوتے ہیں فارم ہاؤس، جیسے آج کل فارم ہاؤس بنا لیتے ہیں مالدار لوگ جنگلوں میں جا کے بڑے بڑے دور دور، ایسے بادشاہوں کی جو شکار کا جہاں شکار کرتے تھے وہاں پہ ایسا رکنے کا ہوتا تو کئی کئی دن میں پلٹ کے آتے تھے وہاں سے، کئی کئی دن میں. نہیں سنا ہوگا آپ نے، پڑھا ہوگا.
تو वो जब वहां गया हुआ था शिकारगाह में, तो जाता था बेचारा, इत्मीनान रखता था, मोहब्बत बहुत करता था। एक जमाना ये आया कि किसी ने शिकायत की कि तुम्हारी बीवी की शिकायत की कि वो अच्छी नहीं है, उसके जो है वो जिन्हें गुलाम से जिन्हें किससे मामलात हैं, ये है वो है। उसे यकीन नहीं आया, लेकिन एक दफा उसने सोच जो है वो ये कह के निकला कि शिकार पे जा रहा हूं। अब सबको पता है जब शिकार पे जाते थे, अब हफ्ता हफ्ता 10 10 दिन में पलट के आते थे। इसने क्या किया, ये कह के निकला तो, लेकिन अचानक से आ गया एक ही दिन में, या जब भी आया जाके देखा अपने हरम सरा में, तो वो उस मर्द के साथ थी। इसने उसे कत्ल करा दिया, और औरत जात से इसे हो गई नफरत। क्या हो गया? औरत जात से हो गई नफरत। अब ये बादशाह क्या करता था, हर रोज शादी करता था, अगले दिन सुबह कत्ल करा देता था। हर रोज शादी करता था, अगले दिन सुबह कत्ल करा देता था। ऐसे करते करते आसपास और उस इलाके में लड़कियों की शॉर्टेज पड़ने लगी, और सब डरने लगे। भाई क्या करें, बादशाह है, कुछ कह भी नहीं सकते। वजीर पे सारी, वो कहते हैं ना कि कुछ भी वजीर कान गरम हो तो वजीर को पहले कान गरम होते हैं, वजीर की आफत आती है। वजीर टेंशन में रहने लगा, अब क्या करूं, अब क्या करूं। घर में टेंशनों में था, बेटी होशियार थी, जहीन थी, का बाबा क्या बात। उसने सारी दास्तान बताई। तो बाबा घबराइए मत, उनसे कहिए। तो वो कह, क्योंकि वजीर को ढूंढ के लानी पड़ती थी हर हर दिन के लिए एक लड़की शादी के लिए। तो उन्होंने कहा घबराइए मत, उससे कहिए मेरी बेटी है। उसने अपनी बहन को कुछ पट्टी पढ़ाई, कुछ बातें बताई, और शादी करी। अब इसने क्या किया, शादी की पहली रात इसने ये किया कि बादशाह से कहा, ऐसी कोई बात कही कि हाँ ये है वह है, लेकिन उसकी मिसाल उस जैसा नहीं हो सकता कोई। अब इसके दिल में ये हुआ कि लालसा जागी कि कौन है जो इतना अच्छा है। तो उसने एक दास्तान सुनाई। और वो क्या करती थी फिर, रोज रात को एक दास्तान बहुत इंटरेस्टिंग शुरू करती थी, और रात को अधूरी छोड़ देती थी। क्या करती थी, तो बाकी कल बादशाह सलामत। अब बादशाह इसलिए कत्ल नहीं कराता था, कैसे ये लालसा रहती थी कि भाई इसके बाद उसका हुआ क्या, उसके बाद उसका हुआ क्या। इसलिए वो कत्ल नहीं कराता था। ऐसे ही उसने 1001 रात कहानी सुनाई। कितनी? 1001 रात। कभी उसने 1001 रातों में सिंदबाद की, अली बाबा 40 चोर, और तालिब, और अली बाबा 40 चोर, हातिम ताई, ये सारी दास्तानें उसमें। और हर रोज यही करती थी, और हर रोज इतने अच्छे से पेश आती थी, आती थी, और ये दिखाती थी कि उसमें हर कोई बुरा नहीं होता। अच्छा, ऐसे करते करते आखिर में उस बादशाह को अपनी की मोहब्बत हो जाती है, और वो जो नफरत औरतों से हो गई थी वो खत्म हो जाती है। ये दास्तान है तो शॉर्ट में। लैला 1000 शादी हुई भी थी शादी तो ये ठीक है। काफिला पूछ कर जब जी। तो इसमें क्या देखा आपने, इसमें करेक्टर क्या है, बादशाह और वजीर की लड़की है नहीं, शहरजाद। शहरजाद। तो अब मसला यह है कि किरदार पूरी दास्तान और किस्सों का, चाहे वो अफसानवी हो चाहे हकीकी हो, उसमें कैसे सबसे अहम चीज होती है सकीना, नौशीन फातिमा। तो ये आप ये मत सोचिएगा मैंने वैसे ही एंजॉय के लिए मैंने, नहीं, हमारा मौजू है उसको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किरदार एक अहम चीज होती है। सुनने और पढ़ने वाले का सारा जहन उसी पे रहता है, सारा किरदार पे नहीं। जी जी, अक्सर उसी रोल पर मत, इसीलिए वो कहानी उन्हीं हिस्सों की तलाश में रहता है इंसान जिनमें उसने कोई किरदार अदा किया। लेकिन पुरानी दास्तानों में किस्से का महवर फकत बुनियादी किरदार नहीं होता। इसलिए आप कुरान की अक्सर दास्तानें देखें, वो दास्तानें जिनका असली किरदार अम्बिया अलैहिस्सलाम है। जैसे जनाब मूसा और फिरौन में जनाब मूसा हैं उस बनी इसराइल के वाक़े में, या जनाब इब्राहिम के वाक़े में जनाब इब्राहिम और नमरूद वाला। तो जिनमें कैरेक्टर और असली किरदार अम्बिया हैं, उनमें पैगंबरों को उस वक्त नमूना और आइडिया एक इंसान कामिल का मिसाल के तौर पर पेश किया गया है, बना के नहीं है, थे ही वो, ताकि आप उनसे सीखें। ये आपके लिए आइडिया है, आपको ऐसा, ठीक है। और उनकी जात वहां पे जात मकसूद नहीं है, बल्कि उनका किरदार करेक्टर मुहिम है, कि आइडियल है ये, आइडियल है।
जैसे आजकल आपको देखा होगा, आजकल जो दुनिया में गंदगी मची है, जैसे बिग बॉस नाम का एक वो चल रहा है, पता नहीं, मैंने तो आज तक नहीं देखा, इस बात का फख्र है, पता नहीं कैसे देख लेते हैं। उसमें आपको क्या सिखाया जाता है, आप जब भी देखेंगे तो आपको उसमें मारधाड़, बदतमीजियां, इज्जतें उतारना, आपको उसमें दूसरे की इज्जत उतार के क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन मिलता है, सुकून मिलता है, आनंद आता है, ये सिखा रहे हैं आपको। आपको पता भी नहीं लग रहा, आहिस्ता आहिस्ता करके आपको वहशी बना रहा है वो, कि आप दूसरे को जलील करके खुशी मिलती है आपको। जी, कभी कुछ, कभी पूरा आपको ज़हनी तौर पर आपको इस तरीके से आपके साथ खेला जा रहा है, पता ही नहीं लग रहा है। उसमें आपको घरेलू लड़ाइयाँ झगड़ा कर करके बदतमीजी तक आपको ये सिखाया जा रहा है। आपको जो क्या क्या सिखाया जा रहा है, कुछ अब मिल कुछ नहीं रहा है उसमें। तो जो ये इसमें क्या है, इनके किरदार, वो लोग किरदार ऐसा बना के पेश करा रहे हैं आपके सामने कि आप वहशी बन जाएं। लेकिन पुरानी दास्तानों में अंबिया को आइडियल बना के पेश किया गया ताकि आप नेक और अच्छे बन जाएं और ऐसे बन जाएं। समझ में आया कि मुसीबतें, आफात, जमाना चाहे आपका कितना मुखालिफ हो जाए, आपको उनके बुराई में नहीं जाना है। अंबिया में यही तो है जी। जी, दुनिया की बड़ी तरीन ताकत जमाने की आपके सामने हो, अगर आप हक पे हैं तो घबराना नहीं, टकरा जाना, बाकी अल्लाह मददगार है। नहीं, तो ये देखे कैसे कैसे जी, अंबिया का किरदार। तो इसीलिए कहते हैं कि सीरियल हो या कुछ भी हो, वो देखें जिसमें आपका करेक्टर बने, आपको वैसी बनना सिखाएं, आपको सब दूसरे की इज्जत उतार के। इसलिए आपने क्या देखा होगा, एक एक लड़ाई होती, बाकी खड़े होके देखते हैं, इससे हमारे अंदर क्या मिलता है, इस और वो लोग भी वही दिखाते हैं जो हमें अगर पसंद आता है। आप सड़क पे जाइए, किसी को कोई कहता है चोर है, सारे मारना शुरू कर देंगे और उन्हें सुकून मिल रहा है उस बात की। कौन सी इंसानियत है कि किसी को पीट के ये करके सुकून मिल रहा है, और एक आदमी मूवी भी बना रहा है खड़ा होकर, कोई बचाने वाला नहीं है मसलन। ये वहशीपन कौन सिखा रहा है, ये करे, ये ऐसे बिग बॉस जैसी चीजें हैं, ये चीजें आपके दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता कर ऐसी तरबियत कर दे रहे हैं वो। या इंडियन सीरियल देख लीजिए, मैंने तो शुक्र है मैंने आज तक इंडियन ये वाला कोई सीरियल नहीं देखे। अब वो अलग बात है, सुपर हीरो वाला वगैरह जैसी चीजें वो, इसमें इसमें क्या है, आपको क्या सिखाएंगे। अब छोटी छोटी बच्चों की क्लिप आती तो है, देखा है आपने, मैं और इसको यूं कर दूं, जान की ना है, कौन सिखा रहा है ये, है कौन, किसने आपको बता दिया सास दुश्मन होती है, नन दुश्मन होती है, बस किसने सिखा दिया सौतेली माँ हमेशा दुश्मन और ये होती है। रियल लाइफ में कभी देखा है कि हमेशा ऐसा होता हो, कितनी अच्छी अच्छी भी है सौतेली माँ। लेकिन आपको सीरियलों ने सिखा दिया सास यानी दुश्मन, पहला कदम घर में ही रखते ही सबसे पहला दुश्मन आपका सास है, और उसके बाद नंदे हैं। कैसी है वो बात, वो तो देखना ही नहीं है, बस ये तक सोच के कदम रखना है, ये मेरी दुश्मन है। और और कुछ इधर, लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं इधर से होते। उल्टा भी है, बहू यानी दुश्मन। अब ये घर में आएगी, इसके साथ सारे सख्तियों से ही काम लेना है। ये कौन सिखा रहा है आपको, बच्चों के, छोटे बच्चों को इसे। तो ये चीजें देखना छोड़ दें, वरना पता भी नहीं लगेगा कि आप कब वहशी बन गए, कब आपको दूसरे को तकलीफ में देख के आपको सुकून मिलेगा, ये ऐसा होने लगेगा। आप पुरानी दास्तानें देखिए, अंबिया को देखिए कैसे कुरान ने पेश किया है, आइडियल के तौर पर। आइडियल यानी वलकुम फी रसूलुल्लाह उस्वतुन हसना, और रसूल अकरम की जिंदगी तुम्हारे लिए उसवा हसना है, नमूने अमल है, आइडियल है जी। हमारे लिए अंबिया और जी, मासूमीन आइडियल हैं, शहजादी जहरा आइडियल हैं, हजरत अली आइडियल हैं जी। तो मैं जी, एकता कपूर की बनाए हुए सीरियलों में जो करेक्टर है वो आइडियल नहीं है। सही है, चलिए, उसमें भी क्या है, उसमें भी पाकिस्तानी सीरियलों में भी आप देख लीजिए, आपको एक ही चीज ज्यादा मिलेगी, तलाक। वो आपको वैसी भी है, वैसी बन सिखाते हैं जी। वहाँ कोई एक सीरियल बताइए, वहाँ हर सीरियल में आपको तलाक मिलेंगी। चलिए आप, चलिए, बहरहाल तो कुरान ने वहां पर किरदार, जात जात मकसूद नहीं है, बस करेक्टर के ये ऐसा होना चाहिए जुल्म के मुकाबले में, बुराइयों के सामने ऐसा होना, ये आइडियल बना के पेश किया है। समझ में आ रहा है नहीं।
कोई तो बोले कि समझ में आ रहा है या नहीं, या मैंने सीरियल वगैरह को बिग बॉस को बुरा कह दिया तो आपको शायद वो तो बुरा नहीं लग रहा। आप लोग देखते नहीं, बहुत नहीं देखते, सिर्फ पाकिस्तानी सीरियल कभी मत देखना, आपको वैसी बनाया जा रहा है, आपके जहन में बहुत सी चीजें फीड की जा रही हैं, सही है। आपको पाकिस्तानी सीरियलों में औरत को कैसे गिराना चाहिए, उसे जलील समझना चाहिए, गिरी हुई एक वस्तु समझनी चाहिए, चीज समझनी चाहिए, वो सिखाते हैं। और इंडियन सीरियल में आपको ये सिखाते हैं कि बहू यानी दुश्मन, सास नंदे यानी दुश्मन, और कैसे साजिशें रचनी है एक दूसरे के खिलाफ, कैसे इनसे पीछा छुटिए, ये मत देखिए। कुरान मजीद के वो बहुत से किस्से जिनमें मरकजी किरदार, अहम किरदार, कैरेक्टर नबियों के बजाय दूसरे मर्द हैं या औरतें हैं या हैवान हैं या जिन्नात हैं या फरिश्तों ने अदा किया है मेन किरदार, उनका नामो निशान बताए बगैर मुबहम तौर पर किस्सों में नाम नहीं बताया है। जैसे कितने लोगों का किस्सा आया कि रजुलुन मुमिनुन यक्तुमु ईमानुहु, उसने अपना ईमान छिपाया हुआ था, वो यूं था। और क्या है, या औरतों के मसलन बहुत सी जगह मिसाल के तौर पर हैं जी, या वो या सूरह नमल में मलका सबा, क्या नाम था, बोलिए, बिल्किस। बिल्किस का नाम आया उसमें कहीं, बिल्किस का नाम आया उसमें, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन शायद कुरान में आया होगा बिल्किस नाम, उस शहजादी का नाम नहीं आया होगा, ना ही उस शख्स का नाम आया आसिफ इब्न बरकिया का, कि जो चश्मे ज़दन में लाए थे। क्या था, उनमें से एक था जिसके पास अस्माए आज़म में से एक था, उसने क्या किया, मैं से तो नाम लिया, वहां पे नाम लिया नहीं, बगैर नाम बताए, किरदार मेन उसने अदा किया है लेकिन नाम नहीं है उसका, सिर्फ उसका, बोलिए मुबहम तौर पर किस्सों में उनका तस्करा, ताकि किस्से का असल हदफ और पैगाम किस्से की शख्सियत में घुस के किस्से का अहम हदफ न खत्म हो जाए, फौत ना हो जाए। जिन मकामात पर शख्सियतों के नाम किस्से के पैगाम को मुंतकिल करने में मौसर नहीं है, अगर किसी किस्से की जो शख्सियात हैं जिन्होंने किरदार और रोल अदा किया है, करेक्टर अदा किया, उनके नाम अगर असर नहीं डाल रहे पैगाम में, जो पैगाम उसका असल हदफ और मकसद है, तो वहाँ नाम नहीं बल्कि, तो वहाँ पे नाम, बल्कि मुखातब के जहन को फर्जी मसाइल को सबब बन सकते हैं। बाद जगह शख्सियतों का नाम अगर जिक्र करते जबकि उसका कोई असर भी ना हो जो उसका हदफ और मकसद है, बल्कि और इधर की बातों में उलझने का सबब बन सकता हो, तो उससे कुरान मजीद में गुरेज करते हुए ज्यादातर असल वाक़े और पैगाम को पहुंचाने पे जोर दिया गया है। जैसे कि सूरह यासीन, देखिए मैंने नहीं पढ़ा था, ये आगे का मैंने नहीं देखा था, लेकिन ये सूरह यासीन में वजाअ मिन अक्सल मदीनत रजुलुन यक़ाल, वही मोमिन ताप की बात है, मोमिन का नाम नहीं लिया गया है, मोमिन का नाम नहीं लिया, कौन था वो, सिर्फ उसके पैगाम का तस्करा कर दिया गया है, सही है। वजाअ मिन, वो शहर के दूर तरीन हिस्से से एक शख्स, रजुलुन दौड़ता हुआ आया, काला का या कौम तबिउल मुरसलीन, ए कौम, ए मेरी कौम वालों, मुरसलीन की पैरवी करो, इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन, उसकी इत्तिबा करो जो तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, कोई फीस नहीं मांगता, वह मुहतदून, और वो खुद हिदायत याफ्ता भी हैं, उनकी इत्तिबा करो। लेकिन जहाँ यहाँ नाम तो नहीं लिया, कौन मोमिन आया दौड़ा हुआ, कौन मर्द आया, बस वाक्य बता, लेकिन जहाँ अशखास के नाम, लोगों के नाम पैगाम पहुंचाने में असर डाल रहे हो और शुबहात को दूर, कंफ्यूजन को दूर करने में अगर मददगार हैं, तो वहां न फकत ये क्या शख्सियत का नाम जिक्र हुआ है, बल्कि उसके रिश्तेदारों के नाम भी वाज़ेह तौर पर बयान कर देते हैं। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दास्तान में उनकी माँ का तज़किरा कैसे हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जनाब ईसा का नाम तो लिया, अहम करेक्टर का, उनकी माँ का नाम लिया, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, खाली ये भी कह सकता था अल्लाह, अगर जनाब ईसा का यहाँ पे किरदार करेक्टर मेन था तो जनाब ईसा का नाम ले लेता, लेकिन क्या था, जब याद करो उस वक्त को जब अल्लाह ने कहा या ईसा इब्न मरियम, है मरियम के बेटे ईसा जी, उसको अला वालिदतिक, उस नेमत को जो तुम्हारे ऊपर तुम्हारी वालिदा पे हमने दी है, उस नेमत को याद करो।
इस अय्यत तो कभी रूह कुदूस, जब हमने तुम्हारी तायीद की रूह कुद्स फरिश्ते, उस फरिश्ते के जरिए से, तकल्लमुन नास फिल महद व कहला, कि तुमने लोगों से बात की, कहा कि तुम क्या थे, फिल महदे गहवारे में थे, क्या थे, देखिए उस वक्त को याद करो जब खुदा ने कहा कि ए मरियम के बेटे ईसा, हमारी नेमत को याद करो जो हमने तुम पर और तुम्हारी माँ पर नाजिल की है, उस वक्त जब रूह कुद्स के जरिए तुम्हारी तायद की कि तुम गहवारे में एजाज के जरिए, मोजज़े के जरिए से, और अधेड़ उम्र में, बुढ़ापे में वही के जरिए से आप बात करते थे। ये बात वाज़ेह रहे कि औरतों में तन्हा जनाब मरियम का नाम है कुरान मजीद में जो सराहत के साथ क्लियर तौर पर जिक्र हुआ है, वरना और किसी किस्सों के किरदार और शख्सियत से मुराद क्या है, हर वो ज़ात है जो किसी वाक़े, किसी गुफ्तगू या फिक्र का मस्दर और सरचश्मा, उन्हीं से वो गुफ्तगू या वाक़या उन्हीं पे डिपेंड। लिहाजा इंसानों के अलावा फरिश्ते, जिन्नात, हैवानात भी कभी कभी पुरानी किस्सों के किरदार नजर आते हैं जी। चुनांचे हजरत सुलेमान के किस्से में चींटी अहम किरदार है, एक वाक़े में चींटी भी तो करेक्टर है, नहीं जानवर है, किस्से का एक किरदार है। जैसे कि हत्ता यहाँ तक इज़ा आतौ, वो अला वादिन नम, जब वो आए, कौन, जनाबे सुलेमान और उनका लश्कर, अला वादिन नम, चींटियों की वादी में, कालत नमलतुन, तो एक चींटी ने कहा, अय्युहा या अय्युहन नमलो, ए चींटी, उदखुल मसाकिनकुम, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, ला यहतमन्नकुम सुलेमान व जुनूदु, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनकी फौज तुम्हें कुचल न दे, पामाल न कर डाले। तो यहाँ पे देखिए जानवर है किरदार है चींटी, कहीं पे जिन्नात, कहीं पे जी। अब जैसे जनाब आदम की खिलकत में एक जिन था, करेक्टर कौन, इब्लीस, शैतान जी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन, इतना फातिमा ही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व